कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पर हमने आपको एक ऐसी खबर दिखाई थी जिसमें नारकेलडांगा इलाके के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि फ्लैट की पूरी रकम चुकाने के बावजूद उसे न तो उसका घर मिला और न ही उसकी जमा की गई रकम वापस की गई। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस व्यक्ति मोहम्मद आरिफ इकबाल पर पैसों की हेराफेरी और बिल्डिंग पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, वह अब खुद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आरिफ इकबाल का कहना है कि वह केवल एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं और किसी भी फ्लैट की बुकिंग, बिक्री या भुगतान के लेन देन से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं 15/44 नारकेलडांगा नॉर्थ रोड स्थित उक्त बिल्डिंग के मकान मालिक भी अब सामने आए हैं। मकान मालिक और उनके परिवार का कहना है कि शिकायतकर्ता अजय दास और उनके बीच कोई सीधा लेन देन नहीं हुआ है। उनका दावा है कि अजय दास ने जो भी भुगतान किया था वह प्रमोटर रंजीत दत्ता को किया था और इस मामले की पूरी जिम्मेदारी भी उसी की है। मकान मालिक का आरोप है कि प्रमोटर रंजीत दत्ता न सिर्फ अजय दास बल्कि इलाके के कई अन्य लोगों और सप्लायर्स का पैसा लेकर फरार हो गया है। उनका कहना है कि रंजीत दत्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और उनकी कथित धोखाधड़ी को देखते हुए उसे बिल्डिंग एग्रीमेंट से भी हटा दिया गया है। मकान मालिकों ने आरिफ इकबाल का बचाव करते हुए कहा कि वे परिवार के सदस्य की तरह हैं और मुश्किल समय में हमेशा उनकी मदद करते रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। अब इस मामले में दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर फ्लैट खरीदारों के पैसों की जिम्मेदारी किसकी है और इस पूरे विवाद के पीछे असली सच क्या है, यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। আপাতত ওকে আমরা চিনতাম না কোনোদিনই, এখন ও এসে নতুন করে এই কথা বলাতে ওকে আমরা চিনছি। ও বলছে আমাদের এই টাকা দিয়েছে ওই টাকা, কিন্তু কোনো কাগজ দেখাতে পারছে না। যে কাগজ দেখাতে না পারলে আমরা কি করে বিশ্বাস করবো? আপনারা কি আগে থেকে অজয় দাসকে চিনতেন না, আমরা কোনোদিনই ওকে চিনতাম না। উনি বলছেন যে আপনার এখানে জায়গা কিনেছে, আপনাদের সাথে দেখা করেছে, এরকম আছে? না, আমাদের সঙ্গে না, যা কিছু করেছে ও রঞ্জিত দত্তর সঙ্গে। রঞ্জিত দত্ত কে? রঞ্জিত দত্ত আমার আগের যে প্রমোটার, যাকে আমরা রিভোক করেছি। ওনার করা এগ্রিমেন্টটাও রিভোক হয়ে গেছে। কারণ উনি আমাদের টাইম মতন দিতে পারেনি, আমাদের অনেক রকম কষ্ট হয়েছে, যার জন্য ওকে আমরা রিভোক দিয়েছি। আপনাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছিল আর কবে আপনারা রিভোক করেন? 2015-তে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, নভেম্বর মাসে। রিভোক করলাম মনে হয় কত, 2014-তে না এই 14 কি বলছে, 2025-এ 2025-এ রিভোক করে দিয়েছেন কি রিভোকের নোটিশ পাঠিয়েছেন? রিভোক করে দিয়েছি। এই কারণেই করেছি যে ও কোনো দিক দিয়ে আমাদের কিছু করছিল না, টাকা পয়সাও দিচ্ছে না, আমরা যে বাইরে রয়েছি সেই ব্যাপারেও আমাদের কিছু করছে না, যার জন্য ওকে আমরা রিভোক করেছি। আমাদের অনেক অসুবিধার মধ্যেই গেছে। আপনারা এই বিল্ডিং এ কতদিন ধরে থাকছেন? এই তো এলাম বিল্ডিং ভাড়া এই 1 বছর হলো। আপনারা পার্টনার কতদিন? পার্টনার বলতে এরা দুই ভাই। হ্যাঁ, কত জায়গা করেছেন আপনারা অ্যাজ পার এগ্রিমেন্ট? আমাদের সঙ্গে কথা ছিল 600, টোটাল 600, তিনতলায় দেবে দিয়ে 300, ভেঙে ভেঙে দোতলায় দেবে 200 আর একটা দোকান ঘর 100। পেলেন কোথায়? পেলাম কোথায়? ও তো দিল না, ও তো পড়ে গেল। ঠিক এরা তৈরি করে জোর করে নিয়ে নিয়েছিল। জোর করে নিয়েছি বলতে ও ঘরগুলো এইটা করেছিল, বলেছিল এটা তোমার, এটা বৌদি, এইটা এই করে চলে গেছে। তারপর এই হলো ব্যাপারটা। ঘর দেখবে যেটা যা দেওয়ার কথা ছিল তার থেকেও ছোট হয়েছে, একদম ছোট। একটা কিচেন যতটুকু দেখাচ্ছি, তার সঙ্গে দেখিয়ে দেবো আপনাদের। কি কাগজে এটা বলুন না? এটা রিভোক করা হয়েছে, এটা রিভোক পেপার। রিভোক পেপার। ও আমাদের টাইম মতন দিতে পারেনি, যার জন্য ওকে আমরা রিভোক করেছি। এটা সেই পেপার। তারপরে যতটুকু যা পেরেছি আমরা নিজেরা করে নিচ্ছি, নিজেরা থাকছি, এইভাবেই রয়েছি আমরা। যা দেওয়ার কথা ছিল ও কিছুই আমাদের দেয়নি, পুরো দিক থেকেই আমাদের ও ঠকিয়েছে। টাকা পয়সা, এই যে আমাদের এত ভাড়া, এত কিছু আমাদের সব লোন করে করে দিতে হয়েছে। তারপরে এইখানে টাকা দিয়েছি, এইখানে যে যার সবাই বলছে পাই, সবাই মাল ফেলেছিল, সেই টাকাটা একটু স্লিপটা দেখালাম,
বাকি বাকি রেখে গেছিল। তারপর ফ্ল্যাট দেখে কিছু লোকের থেকে টাকা নিয়েছে, সেই লোক এসে বাড়িতে বিরক্ত করছে, পাশের বাড়ির লোক পাশের টাকা বাড়ির লোক নিচ্ছে। টাকা নিয়েছে। মানে এগুলোকে আমরা কিছু কিছু করে সব শোধ করেছি, বলেছি ওনাদেরকে বলেছি যে সব শোধ করেছি। একটু সময়ের অপেক্ষা। ঠিক अजय दास बार बार बोल रहा है कि वो सुसाइड कर लेंगे जिसका जिम्मेदार आप हो। क्या किया आपने ऐसा जो कोई इंसान बोल रहा है ये बात? देखिए, सबसे पहला बात तो अजीत दास को हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है। दूसरा बात, वो सुसाइड कर ले या ट्रेन का नीचे चले आए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि अगर वो कुछ भी जैसा बता रहा है कि वो कोई एक जगह खरीदा है, उसका एग्रीमेंट है, उसको वहां जगह नहीं मिल रहा है, उसका वैसे वो जान दे देगा, तो हम उसका जिम्मेदार तब होते जब उसका एग्रीमेंट में हम उस जगह में मेरा साइन होता, या एग्रीमेंट में बैठ के हम रहते, या फिर कोई भी ऐसा बात हुआ रंजीत से या कुछ भी जिसमें हम गवाह रहते या मेरा साइन रहता या कुछ भी रहता, तब हम उसका जिम्मेदार होते हैं। दूसरा बात, हम उसको ओपन चैलेंज कर रहे हैं मीडिया में कि जिस दिन से उसका एग्रीमेंट हुआ है, जो डेट में वो एग्रीमेंट किया, हमको नहीं मालूम कौन डेट में किया एग्रीमेंट, जिस डेट से एग्रीमेंट किया है उस डेट का भी हम नहीं देख रहे। जब से वो पैदा हुआ है तब से हम उसको बोल रहे हैं कि हमको एक चीज, 1 रुपया भी मेरा मोबाइल में या जिसका जिसका नाम लिया है, 6 आदमी का नाम लिया, इंक्लूडिंग थाना का भी नाम लिया है, किसी का भी 1 रुपया भी अपना बैंक से स्टेटमेंट का एक हम लोग को प्रूफ देके दिखाते हैं। क्या हम झूठ बोल सकते हैं, वो भी झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर बैंक से किसी को पैसा गया है तो वो इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। बैंक स्टेटमेंट हमेशा सच बोलेगा। तो 1 रुपया भी जितना आदमी का नाम लिया उस स्टेटमेंट में दिखा दे कि हमें लोग कर दिया, ना उसका एग्रीमेंट में हम है, ना उसका पैसा का लेन देन में हम है, ना उसको हम जानते ना पहचानते, उसका जिम्मेदारी हम क्यों लेंगे? उसका जिम्मेदारी बोलिए उसका बाप को लेने, उसका जिम्मेदारी उसका बाप ही लेगा। आप नहीं लेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। जी, उसने रंजीत दास को पेमेंट किया। रंजीत दास का कहना है उन्होंने, रंजीत दत्ता ने का कहना है कि उन्होंने जो है उस पैसे से इस बिल्डिंग को बनाया आपके थ्रू। तो फिर आप क्यों रुकावट बन रहे हो उसको इस जगह पे घुसने से? हम कोई रुकावट नहीं बन रहे उससे, हम क्यों रुकावट बनेंगे? मेरा बाप का थोड़ी बिल्डिंग है यार। काटने का कोई दिखाइए प्रूफ, कोई प्रूफ दिखाइए। वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसका ध्यान में उसको मुंह में जो भी आगा बोल सकता है, लेकिन आदमी कुछ भी बोलने से पहले प्रूफ चाहिए कि हम उसको बोला है कि तेरे को मारेंगे या धमकी देंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो प्रूफ दिखा दे हमको। हम तो उसको जानते पहचानते नहीं हो कौन है, वो कब लिया, क्या लिया, नहीं लिया। उसका एग्रीमेंट में सिर्फ वो और रंजीत है, उसका एग्रीमेंट में कोई तीसरा आदमी है ही नहीं। इवन जो बाड़ी वाला बिल्डिंग का है, जो लैंडलॉर्ड है, वो भी उसका एग्रीमेंट में नहीं है शामिल। तो ये सब दरअसल लोग दोनों का प्लानिंग है कि कैसे भी करके हड़प लो जगह को, या फिर नहीं मिला तो गुड एंड वेल, नहीं मिला तो फिर उसको डेमोलिश करवा देंगे। बस ऐसा सिस्टम है कि दोनों का प्लानिंग है। ये भी तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ही उसको उसके संग फ्रॉड किया हो, जगह दिखाकर पैसा। वो तो उसका मैटर है ना, विक्टिम भी तो हो सकता है। वो तो हो सकता है। इसमें तो हम तो ये बात नहीं बोले, वो तो उसका मैटर है। लेकिन वो जो बोल रहा है इसका जिम्मेदार आरिफ होगा, इसका जिम्मेदार बाड़ी वाला होगा, इसका जिम्मेदार थाना होगा, इसका जिम्मेदार शकील होगा, इसका जिम्मेदार राजा चचा होगा, इसका जिम्मेदार असलम चचा होगा। जब तुम्हारा कोई भी डॉक्यूमेंट का हम जिम्मेदार तब होंगे जब हम तुम्हारा साथ उस जगह में बैठेंगे, या तुम्हारा एग्रीमेंट में मेरा साइन है, या तुम्हारा एग्रीमेंट में कुछ भी है, या फिर तुम जो पैसा ट्रांजेक्शन किया उसका 1 रुपया भी, जितना आदमी का नाम लिया, किसी का भी अकाउंट में तुम 1 रुपया भी दिखाओ कि तुम भेजा है। कुछ तो नहीं है उसके पास प्रूफ। अब कहीं से उड़ के आगा, कहीं से भी आगा, बोलेगा हम दे दिया पैसा, हम कर दिया। उसका संग ट्रांजेक्शन रंजीत दत्ता का है, रंजीत दत्ता का संग ट्रांजेक्शन जो है आपका है। हाँ, ऑन अकाउंट हाँ, कई। हाँ। तो इससे तो ये भी तो मामला साबित हो रहा है कि वो रंजीत दत्ता ने उससे पैसा लेकर आपको दिया। अब आपको बता दे रहे या फिर रंजीत दत्ता 10 जगह से लेके दिया, इंक्लूडिंग। अच्छा, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। रंजीत दत्ता का मेरे पास कहां गया, रिबॉक, मैंने रिबॉक हमको किया है डेट, ये देखिए, ये हमको रंजीत दत्ता रिबॉक किया है, ठीक है। उसमें रंजीत दत्ता का लिखा हुआ है कि वो हमको 48 लाख रुपया दिया है, और उसी का हिसाब से 61,35,000 कुछ समथिंग हो रहा है, जिसके एवज पे हम ऑलरेडी 13 लाख रुपया रंजीत दास से आज के डेट में पार है। ये उसी का है, ये मेरा भेजा हुआ नहीं, उसी का लॉयर का भेजा हुआ है। अब रहा बात, ये जो 48 लाख रुपया मिला, वो डेट मिला लीजिए कि कब तक हमको मिला, और उसका एग्रीमेंट का डेट मिला लीजिए कि कौन डेट में वो एग्रीमेंट किया है। साफ साफ हो जाएगा कि हमको आरिफ और आरिफ का ग्रुप, हाँ। 4 लोगों का नाम बताया है, वो उस जगह में जाने नहीं दे रहा है। किस जगह जब में आपको रिवॉक रंजीत दत्ता कर दिया, रंजीत दत्ता को रिवॉक लैंडलॉर्ड नहीं कर दिया, तो आप दोनों का ही कोई रोल नहीं होना चाहिए नहीं, इस प्लॉट। हाँ, हाँ। फिर आप क्यों उसको घुसने से रोक रहे थे? अरे बाबा, हम कहाँ रोक रहे हैं, हम कहाँ रोक रहे हैं, हम कहाँ रोक रहे हैं, हम कहाँ किसी को बोल रहे कि आओ मत जाओ।
हमारा ना बाप का बाड़ी है ना मेरा बाप का फ्लैट है, तो हम किसी को बोलने कहा ही जाएंगे कि मतलब बताओ अगर मत जा। आपके लैंडलॉर्ड से बात करेगा हाँ। प्रोमोटर को लेकर, हाँ। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? तो हमको क्या आपत्ति रहेगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो पैसा बाकी है, मेरा जो लागत लगा हुआ है, हमको वाला मिल जाना चाहिए लैंडलॉर्ड इससे प्रोमोटर प्रोमोटर से। रंजीत दत्ता। रद्दी जो उसका हाथ का लिखा हुआ भी आपको देखा यार, हमको दे दे, हमको कोई मतलब नहीं है। हम मजदूर आदमी है, हम काम किया है, हम लेबर प्रमोटिंग किया है, तो उसमें क्या है कि जो मेरा पीछे 200 वर्कर जो काम करता है, 100 आदमी जो काम करता है, उन लोग का पैसा हमको दे दे, हम उन लोग का पैसा उन लोग को दे दे, हम यहाँ से बरी हो जाए। उसका मैटर वो क्या रंजीत को दिया, क्या वो रंजीत से लिया, वो लोग का मैटर वो लोग समझे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको तब लेना देना है जब वो हमको इन्वॉल्व करेगा, तब हम आगे बोलेंगे। हर कागज का पेमेंट का रिसीट में आपका सिग्नेचर, यहाँ तक कि एक ऐसा भी कागज आया है जिसमें आपने 1.5 लाख रुपए लिया है काउंसिलर के नाम लिखकर 2025 के अक्टूबर महीना में। इस बार में क्या करेंगे आप? साइन आपका? हाँ, इस बार में यही कहना चाह रहे हैं कि वो बेचारा को ये बात मालूम नहीं था कि उस टाइम में काउंसिलर प्रकाश उपाध्याय था। 2022 में इकबाल अहमद साहब थे। ये बात तो हुआ ही नहीं है 2022 में, तो साइन आप ही का तो है। तो साइन मेरा नहीं है। वो लोग को क्या साइन किया हुआ है? हाँ? तो क्या साइन किया होगा, फर्जी साइन किया हुआ होगा, कुछ भी किया होगा, वो लोग तो कुछ भी बना दे रहा है। अभी 23,35,000 रुपए उसने आपको दिए। प्रूफ दिखा दे कि हमको दिया है। अगर हमको दिया है तो 1 रुपया का भी प्रूफ दिखा दे ट्रांजेक्शन के दौरे पे कि दिया है। हम झूठ बोल सकते हैं, वो भी झूठ बोल सकता है, लेकिन ने जो बैंक का स्टेटमेंट वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो दिखा दे हमको कि 1 रुपया भी दिया है, तो हम कंप्लीट है। अजय दास और आपके बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस मकान मालिक के साथ और आपके बीच क्या रिलेशन है? वो प्रोमोटर है, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उससे मेरा एग्रीमेंट बना है, रेट बेस में काम करने का मिला है, बस इससे मेरा यही रिलेशन है, आपको रिलेशन नहीं है। रंजीत दत्ता, आप इसके बारे में? रंजीत दत्ता। रंजीत दत्ता है कौन दरअसल? रंजीत दत्ता ये बिल्डिंग का प्रोमोटर है। आपका इस बिल्डिंग से क्या लेना देना? मेरा इस बिल्डिंग से लेना देना, मेरा रेट बेस में काम हुआ है उनसे, मेरा पीछे बहुत सारा वर्कर है जो लोग काम किया है, हम मजदूर आदमी हैं, हमसे जो मेरा पैसा निकल रहा वो हमको क्लियर कर दे, हमको पैसा दे दे, मेरा मजदूर को हम दे दे, बस मेरा कहानी खत्म। मेरा कोई कहानी नहीं है इसमें। जमीन के मालिक को छोड़ के आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों? अभी ऐसा इसलिए लगाया जा रहा है कि इन लोग का बोलने वाला कोई नहीं है। इन लोग बेचारा, अगर इनका औलाद रहता तो फिर कोई बात ही नहीं था, वो आके बोलता, इनका नहीं, इन लोग रो के हमको फोन करके बुलाते हैं। अब मेरा ये लगता है इन लोग को देख के इनको हम माँ बोलते हैं, हमको बेटा बोलते हैं, जबकि हिंदू है मुसलमान है, लेकिन हम लोग के बीच में माँ बेटा का रिश्ता है। ये हमको बुलाते हैं रो के, तो इनके लिए हमको आना पड़ता है, बस मेरा ही रोल है। दिखाया जा रहा है कि एक कागज में आपने सही साइन किया है और उसमें आपने काउंसलर के नाम से भी पैसा उठाया है। ये सब फर्जी बात है, ये सब झूठ बात है, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है, ये सब कोई ऐसा बात नहीं है। वो लोग कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये सब गलत बात है। इस मामले में पुलिस का भी इन्वॉल्व हुई है? हाँ, पुलिस इन्वॉल्व हुई है। पुलिस ने खास करके बोला है कि जो मैटर है इस मैटर को सॉल्व करो। फिर उसके बाद उन्होंने कड़ा इसमें बोला है कि अगर ये सब सॉल्व नहीं होगा, तुम लोगों का जो मैटर चल रहा है, अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा बिल्डिंग को हम सीज कर देंगे, ताला मार देंगे। ये छोटा बाबू, राम बाबू जो ऑफिसर के बारे में उसने कहा है कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। ये ऑफिसर लोग का ये स्टेटमेंट है, उन लोगों ने ये इसके लिए बहुत कड़ा स्टेप उठाया। उन लोगों ने बताया कि कोई भी किसी का भी पैसा इसको बैठ के तुम लोग सॉल्व करो, और अगर नहीं कर सकते तो पूरा बिल्डिंग को हम लोग सीज कर देंगे। आपका लेना देना इस प्रेमाइसेस से सिर्फ पैसे का है अभी अगर बताए तो फिर जान की धमकी की बात बार बार अजय दास बोलता है और ये बताता है कि वो सुसाइड कर लेगा, आपका नाम लेकर क्यों? देखिए, वो सुसाइड कर ले या कुछ भी कर ले, इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा लेना देना तब रहता कि अगर हम उसका साथ एग्रीमेंट करते, मेरा एग्रीमेंट में उसका साइन रहता, या उसका कोई भी 1 रुपया से हमको मतलब रहता, ये मेरा मोबाइल में 1 रुपया भी ट्रांजेक्शन कभी भेजा हो रहता, उसका कोई भी चीज में अगर हम इन्वॉल्व रहते तब मेरा था। लेकिन हम लोग तो कुछ है नहीं। अब वो जान दे, क्या करे नहीं करे, उसका मैटर, रंजीत का मैटर, लोग समझे तो झूठ मूठ का हम लोग को टाना जा रहा है। मतलब जिस एग्रीमेंट में साइन वगैरह किया गया है या फिर जो सेल का एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है वो आपका और अजय दास का नहीं है? नहीं, हमला बिना अजय दास का कुछ है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है। कब एग्रीमेंट बना ये भी नहीं मामला है। আপনারা বাড়িওয়ালা আপনারা কি অজয় দাসের সাথে কোনো এগ্রিমেন্ট করেছেন, কোনো চুক্তি করেছেন? না, আমরা অজয় দাসকে কোনোদিনই চিনতাম না। আচ্ছা, ও হঠাৎ করে এসে যখন এখন বলছে যে আমার এটা আছে, আমার এটা আছে, এখনই দেখছি। ওকে আমরা কোনোদিন চিনি না। ও কি কোনোদিন বাড়িতে এসে বিল্ডিং এ এসে জায়গা দখল করার চেষ্টা করেছে? না, পরে এসছে, এখন এসে তো বলছে আমি এত টাকা দিয়েছি, অত টাকা দিয়েছি, কিন্তু কোন জায়গা ও পার্টিকুলার দেখাতে পারছে না। একদিন বলছে এটা দিয়েছি, একদিন বলছে ওইটা দিয়েছি, এক একদিন এক এক রকম জায়গা বলছে। আপনারা বাড়িওয়ালা আপনারা কি ওর ভাগে টাকা পেয়েছেন? না, আমরা কিচ্ছু পাইনি। ও যে টাকা দিয়েছে, কাকে দিয়েছে, কি করেছে, আমরা 1 টাকাও পাইনি। तो आरिफ, आपके हिसाब से अजय दास पूरी तरह झूठा इल्जाम आपके ऊपर लगा रहा है। अजय दास का इस प्रेमाइसेस से आपसे कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं है। हम तो उसको चैलेंज, ओपन चैलेंज करेंगे, कोई भी प्रूफ दिखाए कि उससे मेरा कोई भी एग्रीमेंट का टर्म्स है या 1 रुपया ट्रांजेक्शन मेरा मोबाइल में देखा है।
ये मेरा नहीं, जिसका जिसका नाम लिया है, जैसा शकील भाई का नाम लिया है, रायचा का नाम लिया है, असलम चा का नाम लिया है, बाड़ी वाला लोग का नाम लिया है, किसी का भी अकाउंट में 1 रुपया ट्रांजेक्शन वो दिखा दे। आज जब से उसका एग्रीमेंट बना तब से नहीं, जब से वो पैदा हुआ तब से दिखा दे। আরিফ আমার ছেলে আছে, আজকে ওর জন্যই আমি এই বাড়িতে আসতে পেরেছি, না হলে এতদিন আমরা পারতাম না। যতটুকু যা কিছু যা সব আমার, ওই জন্য আমি ওকে সব কথায় ডাকি। আমার নিজের ছেলে নেই, আরিফই আমার ছেলে। যে দাস এসে ছিল কিছুদিন আগে, যার জন্য আপনারা কেস করেছিলেন, কি ম্যাটার ছিল এটা বলুন। ব্যাটা ছিল ও ভেতরে ঢুকতে চাইছিল, আমি ওকে ঢুকতে দেবো না, এই নিয়ে অনেক ধাক্কা ধাক্কি চিল্লানো চেঁচামেচি হয়েছে। আমি আর কাউকে না পেরে সবকিছুতে আমি আরিফকে ফোন করি, আরিফ তখন ফোন করেছি, ও এসছে, ও এসে তখন এই ব্যাপার দেখেছে, তার নামে আমরা তখন এফআইআর